हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड. So, today we have our second class of Principles and Practices of Banking. I'm your educator for this subject, Principles and Practices of Banking. So, all of you who are targeting JIB November preparation, November attempt this time, you must follow our channel. We have a foundation batch going on YouTube in the evening every day for all the four subjects. You can watch the channel and it will really help you in uh, clearing your JIB examination for the November attempt. All right. So this is our second class. We have just started this class for Principles and Practices of Banking. So if you are new, it's a good time for you to join the channel. And this is part two. If you want to see part one, you can go to the playlist. And before that, we also made a strategy video for the same subject, and you will find that also in the playlist. All right. So, a brief introduction for the people new to the channel. My name is Shikha. I'm an ex-banker like you. I also worked with the public sector bank for 5 years and I am JIB and CIB certified and now I'm here to help you out with your preparation. So let's start. तो कल हमने क्या देखा था? Yesterday we started with the first chapter of module A which is banker customer relationship. तो उसमें हमने कल क्या समझा था कि बैंकिंग क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय बैंकिंग और बैंक कहलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हु इज अ कस्टमर, कस्टमर हम किसको कहते हैं, दिस वी अंडरस्टूड, तभी तो हमारा एक बैंक का रिलेशनशिप बनता है, राइट. एंड देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप that may arise between a bank and a customer. So we study the first relationship that may arise between a bank and a customer. And today we are going to see further what are the other relationships that could arise between a bank and a customer. So the next relationship that we have is that of a trustee and beneficiary, right? So as you see, the word trustee arises from the word trust. When somebody is putting their trust into someone to do a certain task for them for the benefit of another party, then it is called as a trustee beneficiary relationship, right? तो अगर हम देखें ट्रस्टी रिलेशनशिप क्या होता है, इसमें जैसे आपने देखा होगा कि काफी बार बैंक में ऐसा होता है कि कोई एक माइनर है, उसके नाम पे उसके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर ने एक एफडी करा दी है, ठीक है. Since the child is a minor, they are not in a position to use the FD right now. They don't know their rights. ठीक है. तो उन्होंने बोला है कि even if we pass after a certain age, when the minor becomes a major, just transfer that money to the minor for the minor's benefit. तो इस केस में बैंक का आपका हो जाएगा ट्रस्टी और जो माइनर है वो है बेनिफिशियरी. So bank is acting as a trustee for the benefit of the beneficiary. यहाँ पे जो आपका बनता है क्या बनता है, ट्रस्टी बेनिफिशियरी रिलेशनशिप, राइट. तो ऐसे ही अगर हम देखते हैं और भी क्या उसमें, जैसे बैंक में हम देखते हैं कि मोटर इंश्योरेंस के क्लेम्स आते हैं कई बार, राइट, जिसमें कोर्ट बैंक को डायरेक्ट करता है कि आपको इन द नेक्स्ट 5 years ये क्लेम इस पार्टी को देना है. तो आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट, बट अगर आपने इसमें काम किया है तो हम एफडीज बनाते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 years और वो हम मंथ वाइज इंस्टॉलमेंट में देते रहते हैं. तो यहाँ पे जो बैंक है दैट इज एक्टिंग एज अ ट्रस्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी, राइट. यहाँ पे हम फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं. अ ट्रस्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट when one party, the trustee here, which is a bank, holds assets for the benefit of another, the beneficiary. The trustee has a fiduciary duty to manage the assets solely for the beneficiary's benefit. तो यहाँ पे क्या होता है, जो बेनिफिशियरी होता है
उसकी कोई एसेट ट्रस्टी मैनेज कर रहा होता है और उसको वो एसेट सोलली बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए यूज करनी होती है. तो दैट इज द ट्रस्टी बेनिफिशियरी रिलेशनशिप, राइट. अगर हम आगे पढ़ें तो trustees are required to make decisions in the beneficiary's best interest and have a fiduciary relationship to them, meaning they act in the best interests of the beneficiaries to manage their assets. तो ट्रस्टीज पे क्या है, एक ट्रस्ट रखा जाता है बेनिफिशियरीज के एसेट्स मैनेज करने के लिए. तो दिस इज द ट्रस्टी बेनिफिशियरी रिलेशनशिप. हमने दो एग्जांपल देख लिया कि माइनर के लिए अगर कोई एफडी रखी जाती है उसमें बैंक ट्रस्टी हो गया, या फिर माइनर के लिए कई बार प्रॉपर्टी भी, मान लो किसी गार्जियंस ने अपने किसी माइनर बच्चे के नाम किया और बोला है कि ये जो प्रॉपर्टी है बैंक हैंडल करेगा, तो उस केस में भी ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप बनता है, राइट. सो इट कुड बी एनी काइंड ऑफ एसेट. If a customer keeps certain valuables or securities with the bank for safekeeping or deposits a certain amount of money for a specific purpose, the banker, besides becoming a bailey, is also a trustee. तो इस केस में अगर कोई कस्टमर सेफ कीपिंग के लिए डिपॉजिट्स या कोई एसेट रखता है तो बैंकर बेली बनता है, जो कि एक नेक्स्ट रिलेशनशिप है, अभी हम पढ़ेंगे. साथ साथ एक ट्रस्टी भी बनता है, राइट. आई होप the trustee relationship is clear to you all. Now we are moving on to the next relationship, that is of a bailor and bailey. Bailor and bailey क्या होता है, जब हम किसी को सेफ पोजेशन या सेफ कस्टडी के लिए कोई गुड्स देते हैं या कोई सिक्योरिटी देते हैं for the safe custody, then the relationship that arises is that of a bailey and a bailor. तो कस्टमर होता है बेलर जिसके गुड्स हैं, बैंक होता है बेली, राइट. तो अब हम फर्दर पढ़ते हैं इस रिलेशनशिप को. When a customer deposits certain valuables, bonds, securities or other documents with the bank for their safe custody, यहाँ पे काम जो है एसेट को मैनेज करने का नहीं होता है एज सच कि, बट ये जो है बेसिकली मेंटेन करने का होता है कि आप वो एसेट रख रहे हो, ठीक है. उसका मैनेजमेंट या उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग एज सच नहीं होती है आपके पास, जो कि ट्रस्टी रिलेशनशिप में होती है. Then the bank becomes a bailey and the customer is the bailor. According to the terms of Section 148 of the Indian Contract Act 1872, the bank becomes custodian. सेफ कस्टडी की यहाँ बात हो रही है, राइट. तो कस्टोडियन का जब रोल बैंक प्ले कर रहा है तो बैंक क्या है, बेली, और कस्टमर क्या है, बेलर. और बैंक के क्या ऑब्लिगेशंस बनते हैं कि अगर बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से कोई लॉस होता है, इन दैट केस बैंक इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉम्पनसेट, राइट. सो दिस इज द बेलर बेली रिलेशनशिप. तो अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है ट्रस्टी और बेलर वाला रिलेशनशिप सिमिलर है, तो मेन डिफरेंस हम देख लेते हैं क्या होता है. A trustee is a manager of assets with a legal obligation to act in the best interest of the beneficiary, while a bailey is a custodian of property with a duty to care for and return it. जो ट्रस्टी है उसे एसेट मैनेज भी करनी होती है कि वो उसे बेस्ट इंटरेस्ट में बेनिफिशियरी के एक्ट करे. बेली का काम सिर्फ क्या होता है, एज ए कस्टोडियन आपने बस वो प्रॉपर्टी रखी हुई है. जो ट्रस्टी है that is a wider term, right, and bailor is a kind of a subset of the trustee. ठीक है. तो ट्रस्टी के केस में और क्या डिफरेंस होता है. A trust is a broader legal arrangement that can involve various types of property and complex management responsibilities. तो इसमें प्रॉपर्टी और मतलब मूवेबल और रिमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जबकि बेलमेंट इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड. इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी होती है जनरली, जैसे कि आपका लॉकर हो गया, या फिर मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है. रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर है तो दैट इज जनरली अ ट्रस्टी बेनिफिशियरी रिलेशनशिप. So this is the difference, right?
तो अगर कोई लॉकर फैसिलिटी है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बेलर बेली रिलेशनशिप, जिसमें आप क्या कर रहे हो, सेफ कस्टडी कर रहे हो। तो जो लॉकर है उसमें डिपेंडिंग ऑन हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, उसमें आपका बेलर बेली का रिलेशनशिप भी होता है, उसमें अभी हम आगे रिलेशनशिप पढ़ेंगे वो भी हो सकता है, राइट। अब नेक्स्ट हमारा जो रिलेशनशिप है दैट इज एजेंसी एंड प्रिंसिपल। तो अगर हम इसको समझें तो हम ऐसे देख सकते हैं कि हम इंश्योरेंस एजेंट्स हायर करते हैं काफी बार। हम उनको बोलते हैं कि यार मुझे तो पता नहीं कि मुझे किस तरह का इंश्योरेंस सूट करेगा, लेट्स से मेरे को 50,000 का इंश्योरेंस लेना है, तुम मेरे लिए कोई अच्छी सी स्कीम ढूंढो एंड वो 50,000 जाके उस स्कीम में इन्वेस्ट कर दो। मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दी है कि मेरे बेनिफिट में जो स्कीम है उसको आप ढूंढो और इन्वेस्ट कर दो। और एजेंट को इन रिटर्न क्या मिलता है, प्रिंसिपल से रिवॉर्ड। रिवॉर्ड किस तरीके से मिलता है, प्रिंसिपल ने एजेंट को हायर किया, ठीक है, कोई टास्क को सर्विस करने के लिए, प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए, और प्रिंसिपल ने इन रिटर्न क्या दिया, रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ फीस और कमीशन। तो ये हमारा होता है एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, जहां पे किसी एक पर्सन की एडवाइस पे, कस्टमर की एडवाइस पे बैंकर कोई काम करता है कि मेरे लिए ये काम आप कर दो एज एन एजेंट, दैट इज एन एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे बैंक एजेंट है और कस्टमर आपका प्रिंसिपल है, राइट। इसका अब हम थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, a principal is a person who delegates authority to another person, namely the agent, right? Among the ancillary services rendered by the bank are बैंक की प्रिंसिपल एजेंट सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती हैं, कलेक्शन ऑफ चेक हो सकती है, रेमिटेंस हो सकती है, बिल पे करने की हो सकती है, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे अभी हमने डिस्कस किया कस्टमर के बिहाफ पे। अगर बैंक इनमें से कोई भी सर्विस देता है, दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ एन एजेंसी एंड प्रिंसिपल, राइट। कलेक्शन ऑफ चेक्स क्या होता है, हमारे ब्रांच में जैसे कस्टमर्स आते हैं, दूसरे बैंक का चेक आपको देते हैं और आप उनके बिहाफ पे वो दूसरे बैंक से कलेक्ट कर रहे हो पेमेंट, तो ये क्या रिलेशनशिप हुआ, एजेंसी एंड प्रिंसिपल, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर आप बैंक को चेक इशू करने के लिए बोलते हो, नॉट कलेक्शन, दैट विल जस्ट बी अ डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंस। यहाँ क्या है, द बैंक एक्ट्स एज एन एजेंट, हिज प्रिंसिपल बीइंग द कस्टमर। द रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी however terminates on the death, insolvency and lunacy of the customer or on completion of the work assigned. Agency relationship खत्म हो जाता है in case of death, insolvency and lunacy of the customer, right? Next हमारा relationship है, this is the second last relationship, is that of a lessor and lessee. तो ये जो है terms, these sound similar to a lease, right? We all know what a lease is, ठीक है। अगर आप कोई रेंट पे लेते हैं तो आप लीज बनाते हैं, राइट, कोई प्लेस रेंट पे लेते हैं। तो लीज का क्या होता है, बेसिकली दे आर अलाउइंग यू टू यूज अ स्पेस, ठीक है। तो बैंक में भी लेसर लेसी का रिलेशनशिप जनरली वैसा ही है, जब मान लो आपको लॉकर दिया जा रहा है और उसमें आप एक स्पेस यूज कर रहे हैं, तो आपका जो रिलेशनशिप होता है वो किसका होता है, लेसर और लेसी का। वो आपका रिलेशनशिप बेलर बेली का भी बनता है, वो किस लिए बनता है, सेफ कस्टडी के लिए। और लॉकर अलॉटमेंट जो है वो आपका लेसर लेसी का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स सी, बैंक यहाँ क्या होता है, लेसर, बिकॉज बैंक स्पेस दे रहा है, कस्टमर क्या होता है, लेसी। The bank provides safe deposit lockers to the customers for use on lease basis. The relationship here is that of lessor and lessee or that of licensor and licensee. लेसर और लेसी की जगह हम ये टर्म भी यूज कर लेते हैं, लाइसेंसर एंड लाइसेंसी। द बैंक shall not be liable for any damage or loss of contents of locker
arising from natural calamities or acts of God like earthquake, floods, lightning, thunderstorm, or any act that is attributable to the sole fault or negligence of the customer. लॉकर में क्या होता है कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है या कोई कस्टमर का खुद का नेग्लिजेंस है तो बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, लॉकर में ये भी होता है, वी नेवर नो व्हाट द कंटेंट इज, तो हमें यही नहीं पता कि कस्टमर जो वैल्यू क्लेम कर रहा है वो सच है कि नहीं। ठीक है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि बैंक की नेग्लिजेंस से कोई भी लॉकर में लॉस ना हो। अगर वो होता है देन द बैंक इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें क्या लिखा है, इट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट इंसिडेंट्स like fire, theft, burglary, robbery, dacoity, building collapse do not occur in the bank's premises due to its own shortcomings. अगर बैंक की नेग्लिजेंस से ये सब होता है देन ओनली द बैंक इज रिस्पॉन्सिबल। अब इसमें भी अगर कोई फायर का केस हो जाता है, ठीक है, जिसमें कस्टमर आके बोलेगा कि यार इसमें मेरी क्या गलती है, उसमें भी यू हैव टू प्रूव कि बैंक की नेग्लिजेंस से नहीं हुआ, देन ओनली द बैंक इज लायबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, लेसर लेसी का रिलेशनशिप। ये मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बता रही हूँ कि बैंक की नेग्लिजेंस भी प्रूव करनी पड़ती है इन दीज केसेस ऑल्सो। ठीक है, ये अब हमारा है लास्ट रिलेशनशिप विच इज indemnifier and indemnified. So those of you who attended the class yesterday, we discussed this relationship already a little bit in some other context. इंडेमिनिटी क्या होता है बेसिकली, आप लोगों ने ब्रांचेस में देखा होगा कि अगर कोई कस्टमर लेट्स से किसी ने एफडी कराई है या डीडी कराई है, हम उन्हें एक फिजिकल रिसीट देते हैं। आजकल वैसा ये भी होता है कि ऑनलाइन ही हम सब करते हैं, बट बहुत सारे लोग फिजिकल रिसीट भी मांगते हैं। तो बेसिस दैट फिजिकल रिसीट वी पे देम द मनी बैक। किसी कस्टमर की अगर एफडी मिस हो जाती है, गुम हो जाती है, तो हमें आके वो कस्टमर खुद भी आ जाए एंड ही सेज मैच माय साइन एंड रिटर्न माय एफडी मनी, तो हम वो दे देते हैं? नो, राइट? हम उसे क्या बोलते हैं, गेट एन इंडेमिनिटी बॉन्ड। उसका मतलब क्या होता है इंडेमिनिटी बॉन्ड का? बेसिकली इंडेमिनिटी बॉन्ड इज टू प्रोटेक्ट द बैंक फ्रॉम एनी फ्यूचर पोटेंशियल लॉस। Let's in future somebody finds that receipt and comes back and says कि I am the holder of this receipt, give me the money. So indemnity bond में हम ये साइन करा रहे हैं कि I have already taken the money from my account. I had lost my FD receipt so that no one can come in future and ask for that money. तो ये सेम रिलेशनशिप है इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड का। तो हम यहाँ देखते हैं बैंक जो है इंडेमनीफाइड होता है और इंडेमनिटी होल्डर होता है इस केस में, और कस्टमर क्या होता है, इंडेमनीफायर। बैंक इंडेमनीफाइड होता है और कस्टमर होता है इंडेमनीफायर। इंडेमनिटी प्रोवाइड्स अ शील्ड अगेंस्ट potential financial harm, ensuring someone is not left bearing the cost of losses or damages they are not ultimately responsible for, right? Indemnity often arises from contracts where one party explicitly agrees to cover the other's losses related to specific actions or situations, right? ठीक है, हम समझ गए एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, वो ओनर्स को इंडेमनीफाई करते हैं कि वाइल कंस्ट्रक्टिंग अगर हम आपकी प्रॉपर्टी पे कोई डैमेज कर देते हैं तो वी विल कॉम्पनसेट यू फॉर द सेम। तो एक इंडेमिनिटी का एग्जाम्पल ये भी है। फ्यूचर पोटेंशियल लॉस के लिए जब एक पार्टी आपको प्रॉमिस करती है कॉम्पनसेट करने के लिए, देन इट इज अ indemnifier and indemnified contract, right? I hope it is clear. Now we have understood different kinds of relationship that could exist between a bank and a customer. We have read debtor and creditor, we have read trustee and beneficiary, bailer and bailee, lessor and lessee, indemnifier and indemnified. So these are the different types of relationship that could exist between a bank and a customer. And questions are actually asked in the examination on
these relationships, wherein you have to identify what kind of relationship is made between the two parties. Now we have some sample questions so that you get a practical application of the concepts that we have just understood. So let's move on to the questions now. We have question 1 here, which says tenants entering into a contract with the landlord to cover potential damage to the property is what kind of a relationship? किसी टेनेंट ने एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट में लैंडलॉर्ड के साथ, जैसे हम देखते हैं, हम जाते हैं अगर कोई रेंट पे घर लेते हैं तो काफी बार एक क्लॉज होता है कि अगर आपने कोई डैमेज नहीं किया, हमेशा ही होता है इनफैक्ट, तो आपको 10,000 का अमाउंट हमें देना पड़ेगा। तो ये किस तरह का रिलेशनशिप है? इज इट बेलर बेली? इज इट ट्रस्टी बेनिफिशियरी? इज इट इंडेमनिफायर इंडेमनिफाइड? और इज इट लेसर एंड लेसी? अभी हमने जस्ट एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। In this case, the relationship is that of an indemnity, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस कर रही है दूसरे के फ्यूचर पोटेंशियल लॉस को कवर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा रिलेशनशिप है किसका है? इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। ऑलराइट, now let's move on to the next question. I hope this is clear to everyone. Now we have the next question, which asks what relationship is created when the bank collects a check in clearing? अगर कोई बैंक क्लियरिंग का चेक कलेक्ट करता है तो क्या रिलेशनशिप बनता है? Is it holder for value? Is it agent principal? Is it collecting bank and holder? Or is it clearing member and principal? तो ये भी हमने अभी आज के लेक्चर में ही डिस्कस किया। क्या रिलेशनशिप बनता है? इट बिकम्स एन एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, जहां पे आपको जो कस्टमर है, सॉरी प्रिंसिपल, जो कस्टमर है वो आपको बोल रहा है कि मेरा एक एक्स बैंक का चेक मैं दे रहा हूं, आपके चेक बॉक्स में डाल रहा हूं, ये आप मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर देना। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ अ एजेंट एंड प्रिंसिपल। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It asks what relationship is created when a customer asks the bank to issue a check. अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें क्या था? हम पूछ रहे थे कलेक्शन ऑफ चेक। अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे एक चेक इश्यू कर दो, तो क्या रिलेशनशिप बनता है? इज इट डेटर क्रेडिटर? इज इट एजेंट प्रिंसिपल? इज इट कलेक्टिंग बैंक एंड होल्डर? और इज इट बेलर एंड बेली? So here the relationship is that of a debtor and creditor. बैंक ने कुछ अथॉरिटी नहीं दिया आपको अपने बिहाफ पे करने के लिए। यहाँ पे बैंक ने बेसिकली आपसे एक तरह से चेक इशू करने को बोला है, तो यहाँ पे आपका रिलेशनशिप क्या बनेगा? डेटर एंड क्रेडिटर। नाउ वी हैव दिस एज द लास्ट क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मैं भी रीड आउट कर देती हूँ। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप्स इज इनकरेक्ट? अब इसमें आपको बी केयरफुल, ये पढ़ना भी जरूरी होता है कि इनकरेक्ट रिलेशनशिप पूछा है। डिपॉजिट इन द बैंक में बैंक इज द डेटर एंड कस्टमर इज द क्रेडिटर। लोन में बैंक इज द क्रेडिटर एंड कस्टमर इज द डेटर। कलेक्शन ऑफ चेक में बैंक इज द प्रिंसिपल एंड कस्टमर इज द एजेंट। और सेफ कस्टडी में बैंक इज द बेली एंड कस्टमर इज द बेलर। राइट, तो आपको बताना है कि कौन सा रिलेशनशिप इसमें रॉन्ग है। ऑलराइट, so this is your homework question. I hope you were able to understand all the different types of relationship that could exist between a banker and a customer, and you'll be able to solve the questions on these relationships now. So, for all of you who are seriously targeting the JIB preparation for this November, we also have a paid batch going on, जिसमें हम आपको और descriptive comprehensive classes देते हैं. For that, we provide all kinds of mock tests, PDF notes,
These are the plans we have. इसके लिए आप हमारी ऐप पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, and you'll be able to find all the courses which are going on and join it there. वहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस होती हैं. And to get a PDF of our today's session, you must follow us on Telegram and you'll find a downloaded PDF. And if you're new to the channel, subscribe to the channel so that you get regular updates about our videos. Thank you and have a good day.